Hi. After watching the thumbnail of this video, you might be thinking why we are talking about RBI Grade A. Whether it's RBI Grade A which is going to come this year, whether RBI Grade B is not going to come this year, ऐसे questions आपके दिमाग में आ रहे होंगे. I'll try to answer all these questions, but I must tell you that whatever I'm going to tell you, it's all based on speculation, which is not random, which is based on experience and which is also supported through information that we are getting through RTIs. इस वीडियो के बाद आपकी अनसर्टेनिटी जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस है ना कि ग्रेड ए आएगा या बी आएगा या दोनों आएंगे या कितनी सीट्स आएंगी, दैट विल नॉट गेट कंप्लीटली रिजॉल्व, बट फॉर श्योर योर अनसर्टेनिटी विल गेट रिड्यूस्ड एंड यू विल काइंड ऑफ गेट अ डायरेक्शन. जो आपके मन में तूफान चल रहा है ना वो शायद थोड़ा थम जाए. अब हम ग्रेड ए के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. देखिए, हाल ही में एक आरटीआई आई थी विच टोल्ड कि भैया जितनी सीट सैंक्शनड हैं और जितने लोग उन सेक्शन सीट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस में हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस है, इफ आई टॉक अबाउट ग्रेड ए लेवल, दैट इज़ वेरी ह्यूज. That is around 1400 or maybe 1300. I don't remember the exact number. That there are a lot of vacant seats when we deduct the people in service versus the sanction strength at grade A level, whereas at grade B level this number is really less, say less than 20. So this let people to believe कि grade B level पे क्योंकि vacant seats कम है, grade A पे बहुत ज़्यादा है, so grade A would come. ठीक है, तो ये सिर्फ कंटेम्पलेशन है. अब ऐसा नहीं है कि ग्रेड ए पे अभी इसी साल सीट्स ज़्यादा हैं वैकेंट, पिछले साल नहीं थी, पिछले साल भी होंगी शायद. ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू रेज इज वेयर आई एम गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ. मतलब ये आरटीआई में लिखा ज़रूर है कि ग्रेड बी में देर आर लेस वैकेंट सीट्स, दैट इज सैंक्शन माइनस पीपल इन सर्विस, बट दैट डजंट मीन कि इस साल ग्रेड बी नहीं आएगा. मतलब it can come also. I'll give you my logic. First is that yes, there are say X people in service, but a lot of people from that would resign every year. On an average, through RTIs we have got to know that there are 6 to 9 people which resign. तो ये लोग भी resign करेंगे. दूसरी चीज़ है कि काफ़ी grade B officers promote होंगे, grade C बनेंगे, so those seats will also become vacant. And the third point which is very important I want to raise is that if there is a certain sanction strength, say Y is a sanction strength, does that mean that Y cannot be increased? Do we know the procedure? Are we assuming that to increase Y, it is a very tough procedure and maybe the approval of Ministry of Human and Resource Development is required? We don't know these answers, and I believe that if RBI really wants RBI grade B officers in their office, they can increase the sanction stats say from Y to Y plus 50 or Y plus 100. So it all depends upon what RBI needs, what kind of people RBI needs, and they will recruit at that level rather than what we are discussing here. I would not say that this is a very important information that we should consider to decide whether grade A will come or grade B will come. ठीक है, तो कोई भी आ सकती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ द नीड ऑफ आरबीआई. बट हाँ, एक व्यू पॉइंट ये भी है कि भैया अगर 1400 सीट्स वैकेंट हैं, समहाउ आरबीआई विल फिल दैट एट सर्टन पॉइंट, शायद अब नहीं तो नेक्स्ट ईयर, वॉट एवर दैट मे हैपन. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये डिस्कस करना बनता है दैट व्हाट इज़ द पैटर्न, सिलेबस, सैलरी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेड ए वर्सेज ग्रेड बी अगर वो आती है, दैट इज़ ग्रेड ए आती है. तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड माई डिस्कशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन other grade A exams that are already existing like IFSCA, SEBI, NABARD, IRDI. तो इनमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं क्या सिलेबस है, पैटर्न है, हम इसके बेस पे सारी डिस्कशन हमारी करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द पैटर्न, बट बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ द पैटर्न, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ विच इज़ द मेन थीम ऑफ दिस वीडियो, दैट वॉट एवर द पैटर्न इज, वॉट एवर द सिलेबस इज, one thing is very clear. If you see all these exams that are happening in the regulatory body domain, RBI, NABARD, SEBI, IRDA, PFRDA, इन्होंने कहीं ना कहीं RBI का सिलेबस चेप लिया है और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है. RBI is kind of their mother examination. For example, RBI फेज 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GA पूछ रहा है, फेज 2 में इंग्लिश, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, ये सब्जेक्ट्स पूछ रहा है. नबार्ड ने क्या किया, नबार्ड ने बोला हम फेज 2 के भी थोड़े सब्जेक्ट फेज 1 में पूछ लेंगे और फेज 2 में हम ARD ऐड कर देंगे बेसिकली. बाकी ESI सेम है, इंग्लिश सेम है, RBI वाला.
सेबी ने क्या बोला, भैया हमारे कोर सब्जेक्ट्स तो कंपनी लॉ, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग है, सो वी वुड ऐड दी सब्जेक्ट्स इन आर फेज 2 अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस मैनेजमेंट इंग्लिश इकोनॉमिक्स दैट इज ऑलरेडी देयर इन आरबीआई, और हम इसको फेज 1 में भी पूछ लेंगे। इरडाई ने कहा कि भैया ठीक है, हम भी मैनेजमेंट, ईएसआई, इंग्लिश पूछ लेंगे जो आरबीआई में है, साथ में हम इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं बिकॉज दैट इज अवर कोर एरिया। पीएफआरडीए ने बोला कि ठीक है भैया हम पेंशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज आवर कोर एरिया। सो इन्होंने कहीं ना कहीं इन्हीं सब्जेक्ट्स को बेस मानकर अपने अपने अकॉर्डिंगली ढाल लिया है। दैट क्लियरली शोज दैट यही सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं विच इज बीइंग आस्क्ड इन ऑल दी एग्जामिनेशंस। सो ये सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं, चाहे ग्रेड आए, ए आए या बी आए, दैट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि दीज सब्जेक्ट्स रिमेन दी सेम, चेंज भी हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। सो वट एवर इज गोइंग टू बी द पैटर्न, वट एवर इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी लेवल, द मेन पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब्जेक्ट्स अगर हमारे अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, देर इज अ गुड चांस दैट बाय द टाइम द नोटिफिकेशन अराइव्स आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हमें सिर्फ पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। अब हम पैटर्न को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो इफ आई सी दी नबार्ड ग्रेड ए पैटर्न, ठीक है, हम आरबीआई ग्रेड ए के पैटर्न को थोड़ा डिकोड करते हैं। इफ आई सी दी नबार्ड ग्रेड ए पैटर्न, इट ऑल्सो हैज 200 क्वेश्चंस, बट इसमें उन्होंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को क्वालिफाइंग बना दिया, वेयर एज एआरडी एसआई जीए को मेरिट बेस्ड बना दिया। सो फर्स्ट इज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इज क्वालिफाइंग एंड व्हाट इज मेरिट बेस्ड आर एक्चुअली टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक एआरडी एंड ईएसआई। सेबी ने क्या किया, उन्होंने 2 ही पेपर बना दिए कि ये तो पूरा पेपर ही क्वालिफाइंग हो गया जिसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, और पेपर 2 which is merit based is based on technical subjects where they are asking you 6 subjects including finance management and economics। तो अगर हम इन दोनों को एनालाइज करें, देयर इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन के 2 पैटर्न हो सकते हैं। या तो आरबीआई ग्रेड ए में भी 200 क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें से क्यूआरई क्वालिफाइंग हो सकता है, विच माइट बी गुड न्यूज फॉर मैनी। मैं तो इसके लिए बहुत देर से पिच कर रहा हूं, और एफएम इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट ऐड करके जीए के साथ मेरिट बेस बना दिया जाए। आई डोंट थिंक जीए वुड बी मूव टू द क्वालिफाइंग सेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा नबार्ड का कॉपी हो जाएगा अगर ऐसा होता है, नबार्ड में भी ऐसा ही होता है। और अदरवाइज दे माइट like to move on what SEBI is doing. They might have 2 papers in phase 1. Paper 1 quant reasoning English qualifying, paper 2 FM ESI GA. This would be on the SEBI kind of pattern, but GA would not be in the qualifying paper. I feel GA would still be in the merit section because GA is something which RBI thinks is very important where students should be tested. So ये 2 possible pattern हो सकते हैं, और इन पैटर्न में, दोनों पैटर्न्स में अगर क्यूआरई क्वालिफाइंग होता है ऑब्वियसली उसका लेवल बहुत इजी हो जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी टफ, और अगर टफ भी रहता है तो क्वालिफाइंग होने के बाद उतनी जो एक हम बोलते हैं ना कि एक स्ट्रगल है वो हमारी कम हो जाएगी। सो वी हैव डिस्कस्ड द पैटर्न ऑफ फेज 1, पॉसिबल पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ नबार्ड एंड सेबी, बट देन आई वांट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ इरेडाई आल्सो व्हिच इज कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट एट ग्रेड ए लेवल। अब इरडाई ग्रेड ए में है, ठीक है, ग्रेड ए लेवल पे है, बट स्टिल इट इज हैविंग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड जीए एज मेरिट बेस्ड सेक्शंस, नॉट क्वालिफाइंग, और कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट वो फेज 1 में नहीं पूछता है। सो ग्रेड ए पे ऐसा पैटर्न भी हो सकता है एज वी आर सीइंग इन केस ऑफ इरडाई। तो हो सकता है कि आरबीआई ग्रेड भी अपना एग्जिस्टिंग पैटर्न फॉलो करे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए ही रखे, फेज 1 में मेरिट बेस्ड रखे, but since it would be a grade A, might be the level of questions would decrease in quant reasoning and English and little bit in GA. I don't expect कि GA में बहुत ज़्यादा decrease हो जाएगा, ठीक है। So these are the possible patterns which can come in phase 1. If I talk about phase 2, so अगर मैं grade A के 2 बड़े papers की बात करूँ, नबार्ड और सेबी, दोनों में 2-2 पेपर्स हैं। इंग्लिश है इसमें और ES एंड ARD है, इसमें इंग्लिश है, एंड द सेकंड वन इज टेक्निकल पेपर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो यहां से ये पिक्चर निकलती है कि ग्रेड ए में 2 ही पेपर आएंगे, और नबार्ड ग्रेड बी में 3 पेपर हैं, आरबीआई ग्रेड बी में भी 3 पेपर हैं, इंग्लिश, एफएम एंड ESI। सो दिस माइट हेल्प अस डिड्यूस के ग्रेड ए में 2 पेपर आएंगे, ग्रेड बी में 3 पेपर आते हैं। सो अगर आरबीआई ग्रेड ए आता है, दिस माइट बी दी वन पॉसिबल पैटर्न के पेपर 1 इंग्लिश हो जाए, पेपर 2 एफएम और ESI का कॉम्बिनेशन हो जाए। But again, I would like to revoke what happens in IRDAI, which is recruiting at grade A level. ये grade A level पे भी 3
पेपर्स को कंडक्ट करता है। 3 पेपर्स कौन से हैं? इंग्लिश, ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। सो ग्रेड ए लेवल पे भी 3 पेपर्स हो सकते हैं, और वो 3 पेपर अगर होंगे तो मे बी आरबीआई विल कीप दीज 3 पेपर्स विच आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ एज इट इज, बट द लेवल माइट रिड्यूस अ लिटिल बिट। अभी भी वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं वैसे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो टफ ही रहेंगे, उनका स्कोप ही इतना है। तो ये 2 पैटर्न हो सकते हैं। बट अगेन द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, पैटर्न क्या होगा? 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होगा, क्वालिफाइंग होगा, मेरिट बेस्ड होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, दे आर कंसिस्टेंट अक्रॉस एग्जाम। सबने अपना अपना मसाला डाल दिया है। सो इवन इफ आरबीआई ग्रेड बी ट्रांसफॉर्म्स इनटू आरबीआई ग्रेड ए, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट यही सब्जेक्ट्स आपको ग्रेड ए में अलग पैटर्न और अलग डिफिकल्टी लेवल पे पूछे जाएं। अब सिलेबस की बात करें तो आई डोंट सी देयर वुड बी मच चेंज इन सिलेबस, बिकॉज अगेन इफ आई कंपेयर सेबी ग्रेड ए विद आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए में फाइनेंस आता है, मैनेजमेंट आता है, इकोनॉमिक्स आता है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम सिलेबस दैट यू सी इन सेबी फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, दैट इज देयर इन आरबीआई। नबार्ड में ईएसआई का जो सिलेबस है वो आरबीआई से पूरा मिलता जुलता है ग्रेड बी से। So I don't think there would be huge change in the syllabus if at all that happens, and maybe if there is a change, that is a normal change, incremental change that would have happened even if RBI grade B would have continued. जैसे कि I think one topic they would love to add is role of AI in banking. ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स तो अगर ग्रेड बी भी अगले 5 साल कंटिन्यू होता है, दे विल कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग, दे विल कीप ऑन चेंजिंग। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इरिडाई ग्रेड ए, इफ्सका ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, एवरीवन हैज द सिमिलर कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एज, दैट एज शुड बी लेस देन 30 years. सो आई होप एंड आई विश दैट दैट वुड होल्ड ट्रू फॉर आरबीआई ग्रेड ए ऑल्सो। ठीक है, इसको कम नहीं किया जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इफ आई टॉक अबाउट नबार्ड, ठीक है, नबार्ड की बात करें और इरिडाई की बात करें, दे हैव अ कंडीशन ऑफ 60% इन ग्रेजुएशन, एंड ग्रेजुएशन कैन बी इन एनी स्ट्रीम। बट अगर मैं सेबी की बात करूं और इफ्सका की बात करूं, दे डोंट हैव दिस 60% इन ग्रेजुएशन कंडीशन। वो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी कुछ इनमें स्ट्रीम्स भी सिलेक्टेड है सेबी में, तो कि अगर आप स्ट्रीम आपकी एलिजिबल है फिर कितने भी मार्क्स हो। बट आई फील आरबीआई इज वेरी क्लोज टू नबार्ड एंड आईआर, दैट इज इरिडाई, rather than सेबी एंड इफ्सका। सो व्हाट हैपेंस इन नबार्ड एंड इरिडाई, वही चीज़ शायद यहाँ पे भी लागू हो कि आपके जो 60% ग्रेजुएशन वाली चीज़ है वो कंटिन्यू हो इन दी अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिलैक्सेशन इन दी रिजर्व कैटेगरीज। सैलरी, जो कि बहुत लोग के लिए शायद एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अगर ग्रेड बी से रिक्रूटमेंट ग्रेड ए में मूव करती है, देयर वुड बी डिप इन दी सैलरी। हाउ मच दैट डिप वुड बी, आई एम नॉट श्योर, बट अगेन इफ आई सी के आरबीआई में तो आपका सीटीसी 30 प्लस रहता है, 30 लाख प्लस, वेयर एज इन सेबी नबार्ड इट माइट बी इन रेंज ऑफ 26, 27। ठीक है, तो शायद वो 2-3 मैक्सिमम 5 lakhs तक का कट हो सकता है। आई थिंक 2-3 लाख का ही होगा इफ़ यू कंपेयर द सैलरी ऑफ ग्रेड ए विद रिस्पेक्ट टू ग्रेड बी। बट यहाँ पे एक चीज़ और सोचने वाली है कि ग्रेड बी से आप जो प्रमोशन होती थी ग्रेड सी में, दैट वुड हैव टेकन 7 years। ग्रेड ए से ग्रेड बी मे बी दैट वुड हैपन इन 3 years और 4 years। तो जो ये आप एक कट ले रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सालों के लिए है आपके लिए। इनिशियली ऑब्वियसली दैट वुड बी अ कट, बट विद इन 3 years 4 years व्हेन यू गेट प्रमोटेड टू ग्रेड बी, तो आपकी एक जो एक कसक है कि मैं ग्रेड बी पे नहीं ज्वाइन कर पाया, तो शायद वो 3 साल में पूरी हो सकती है। पर 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, तो अगर हमें वो करियर में पीछे जाना पड़ेगा तो एक हिट होगा। बट अनदर माइंडसेट कैन बी दैट वॉट एवर इट मे, आई वांट टू वर्क फॉर आरबीआई वेदर इट इज ग्रेड ए और ग्रेड बी। बाकी मैं यही कहूँगा कि अनसर्टेनिटी से अगर आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, देन मूव आउट ऑफ दिस स्पेस। अगले साल बहुत सारे एग्जाम्स हैं, दोबारा बैंकिंग में वैकेंसीज आएंगी, ईपीएफओ की भी वैकेंसीज आ सकती हैं, ईओएओ की एंड एपीएफसी की, विच इज़ अ वेरी गुड जॉब। बट डिसाइड फास्ट, डो नॉट जस्ट कीप ऑन लिंगरिंग कि मैं आरबीआई करूँ या ना करूँ, एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स ऑल्सो। सो बी फोकस्ड एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो विद दैट आई टेक योर लीव, और जाते जाते यही बताऊंगा, समरी यही है भैया, सब्जेक्ट सेम ही रहने की प्रोबेबिलिटी है,
क्वालिफाइंग हो, मेरिट हो, एक पेपर हो, दो पेपर हो, डिफ़िकल्टी लेवल कम हो, ज़्यादा हो, अगर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड है ना, यू वुड बी ईजिली एबल टू अडेप्ट टू द कंडीशन कि कैसा पेपर आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, किस डिफ़िकल्टी लेवल पे आएगा। बट अगर सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर्ड नहीं है और पैटर्न भी चेंज हो गया, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो बाकी लोग ले जाएंगे ना, आप उससे बिल्कुल भी compete नहीं कर पाएंगे। सो विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।